Okay, let's begin. Let's start with a good example. Okay, so like in our example, what I mean to say here, suppose like let's take two characters here. Okay, Mm-hmm. so there are two scientists. Okay, and here is scientist A, and this is scientist B. Mm-hmm. So they are working for the betterment of the society. Okay, Mm-hmm. so the theory starts from this particular example, and they are working for the betterment of the society. Huh. They decided to collect some health statistics. So they decided to collect some health Statistics. statistics. So what I'm saying here, they are working for the betterment of the society, and they want to collect some statistics, some health statistics. Okay, Mm-hmm. Mm-hmm. of the people residing in a particular area. Okay, so Huh. they want to collect some health statistics of some people residing in some particular area. Let us say any area, you can put it Scofields ले लीजिए, काचीगुड़ा ले लीजिए, anything you can take into consideration. Okay, Huh. so this is the entire population of that area. I'm just drawing the population. Okay, so the Huh. entire population of the area is this. Not good at drawing, but okay. So we started the example that there are two scientists. Okay, so Mm-hmm. these two scientists are working for the betterment of the society, and they decided to collect some health statistics Mm-hmm. of people residing in a particular area. So let us say the area is Kachiguda. Mm-hmm. Let's make this famous. Yeah. So this is the entire population of Kachiguda area in our example here. Okay, so I'm not counting this, but you can see like ये हमारा Kachiguda area का पूरा एक population है, entire population. Huh. Now what happens? See, now this is the entire population, but you can estimate, sir. Huh. Like the scientists cannot go to each and every household and talk to people regarding their health conditions. Okay, so when Huh. I speak about the population of India, I Mm. cannot count each and every person from Kanyakumari to Jammu and Kashmir and from Manipur to Gujarat. I Huh. need to collect some samples, and based upon those samples I'll try to find out the population. Okay, Huh. based upon some particular samples. Or Huh. if I have population data, for example, then I can create then I can take out some samples out of it. Either way it is possible. Okay, Mm. so we cannot go and talk to each and every one in the area of each, okay, one of these in population. So instead of working on the entire population, let us Mm. work on some small subset of the population. We say then sample. So Yeah. since it is not easy for these scientists to go and talk to each and everyone in the entire Kachiguda area, so they cannot go to each and every household and talk to each and every person. Instead of that, what they do, they select one small lane, or they select some 4 or 5 lanes. Okay, Yeah. and Yeah. they try to talk to the people of those 4 to 5 lanes, and from that they try to derive their statistics. That means Huh. they try to derive, they will try to derive, they will try to see what is the health of the entire people in Kachiguda area. Okay, what is Huh. the health condition of the entire Kachiguda's population. So if I say Kachiguda has 30 lanes, and in those 30 lanes this is the number of people which I'm showing you, so Yeah. they'll select some 5 lanes out of these 30 lanes and try to see what is the health condition of those people in those 5 lanes, and with the help of that they'll try to find out what can be the health condition of the Kachiguda area. Okay, so when we are picking out 5 lanes and some people out of these 5 lanes, we say them as sample. So if I say Mm. this complete circle is Kachiguda, this small circle out of this big circle is Yeah. nothing but sample. I'll write this as sample. Okay, Mm-hmm. and this Mm-hmm. big circle as population. Mm. तो कॉमन सेंस की बात है. ओके सर,
हाँ. So now we cannot go and talk to each other and everyone in the area or each one of those in this particular population which I'm showing here. So instead Yeah. of working on the entire population, it's not easy to work on the entire population. Let us say we work on small subset of the population. अब जैसे subset किसको बोलते हैं सर? अगर मेरे पास यहाँ पर 5 numbers है 1 2 3 4 5, इसमें से अगर मैं 3 4 लेता हूँ तो ये 3 4 ये The subset of ये A है और ये B है. So I can say B is a subset of A. Yes. A. So that's what. तो ये ऐसा होता है. And वो subset को हम बोलेंगे sample और इसको हम बोलेंगे population. So I'm doing the same thing here. So let Yeah. me come out here. So I'm picking out some samples out of this population. Okay. So this is the sample. This entire thing is population. Let's move forward. So this particular big box represents the population. Out of this, I've picked out these 5 people, this small box. Yeah. Let's move forward. So they start collecting data from these people, and they initially decide that they would work on the average weight of an individual. So now their motive is to see what is the weight of individual in this particular Kachiguda area. Okay, so weight is one of the measures or one of the aspects with which the health condition of a person can be inferred. Okay, so they like start collecting the data and collecting the data from these people, what we say, from these people, the sample. They cannot go to each and everyone, so they collect samples. Okay, so they start collecting the data from these sample. Okay, from these people actually sample. So they initially decide that they would work on the average weight of an individual. Okay, so while they are doing the research, they learn of this character. I'll show you the character. So वो क्या कर रहे हैं सर? ये पूरा पॉपुलेशन में से लोगों ने सैंपल लिया और इनसे बातचीत करके इनका वेट क्या है वो मालूम कर रहे हैं. ओके, मतलब एवरेज वेट. एवरेज वेट क्या है, ये सैंपल जो उन लोगों ने कलेक्ट किया है 8-10 लोगों का, उनका एवरेज वेट क्या है वो देख रहे हैं. ठीक है ना? सो while they are doing this research, okay, these two scientists, while they are doing this research, हार्ड वर्क कर रहे हैं बेचारे, तो उनको एक कैरेक्टर मिलता है, फनी कैरेक्टर. ओके, सो they learn about this character. This character is called Mr. Null. ये कैरेक्टर का नाम है मिस्टर नल. ये क्या नाम है? ये हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सर. इस कैरेक्टर के ऊपर ही हमारा पूरा हाइपोथेसिस बनेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग मिस्टर नल बोलते हैं. So they come across this character called Null, Mr. Null, and you can think of this character as a negative character. Sir, ये एक टाइप का नेगेटिव कैरेक्टर है सर. ओके, ये पूरे स्टोरी का ये नेगेटिव कैरेक्टर है ऑफ दिस स्टोरी जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं. So now what Mr. Null is known for is to criticize every scientist who's trying to do something good. तो ये नल क्या करता है? सबको क्रिटिसाइज करता है सर. जो भी साइंटिस्ट आता है, कुछ अच्छा काम करने का सोचता है, समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी, दे वांट टू थिंक, दे वांट टू डू समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी, दिस गाय काइंड ऑफ क्रिटिसाइजेस देम. तुम लोग मतलब उन लोग को क्रिटिसाइज करता है, ये बेकार लोग है, बेवकूफ लोग है, इन मेरे से ज्यादा नॉलेज नहीं है उनको, ब्ला 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 एक्सेट्रा. ओके, सो नेवरथलेस our good scientists keep on working, and here is the conclusion that they reach at. मतलब हमारे साइंटिस्ट ऐसे कैरेक्टर से डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, बट वो अपना काम कर रहे हैं डिलीजेंस से, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और वो अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. ठीक है ना? सो आफ्टर डूइंग देयर बेसिक एनालिसिस, दे कंक्लूड ऑन एन एवरेज द मीन ऑफ द सैंपल इज 70. तो जो सैंपल हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया उसका एक मीन निकाले उन लोगों ने. मीन क्या है सर? एवरेज वेट. बोलते हैं कि एवरेज जो वेट है वो 70 है, यानी वो 70 kg समझ लीजिए, या समझ लीजिए जो हम लोग एक सैंपल कलेक्ट किए उसका मीन, उसका एवरेज उनको 70 आता है. कितना आता है?
70. So now I am writing here, ये लोग साइंटिस्ट लोग एक कंक्लूजन पे आते हैं कि द मीन ऑफ द सैंपल, ओके आई विल से x बार, मीन को हम x बार बोल के डिनोट करते हैं. देयर आर टू मीन्स. म्यू डिनोट्स द मीन ऑफ पॉपुलेशन Yep. एंड x बार डिनोट्स मीन ऑफ सैंपल. और एवरेज, मीन का मतलब एवरेज. एवरेज तो सभी को पता होता है सर क्या होता है. हाँ. सो अब हम लोग को क्या समझ में आ रहा है सर कि द एवरेज मीन ऑफ द सैंपल इज 70. ओके 70. हाँ. सो दे कंक्लूड दिस. So now let's go ahead. So अभी इसमें क्या हो रहा है सर? Let's move forward. Now these two are the scientists here. So they are doing their analysis, and here what we have seen is like what they have spoken, and here the scientists are again A and B. Okay. Now B says like my guess is that the population mean is 70. तो B बोलता है ऐसा, तो वो लोग कंक्लूड करते हैं. B says my guess is that the population mean is 70. Okay. And A says मतलब ये पॉपुलेशन के बारे में बोल रहा है सर. मतलब दो साइंटिस्ट है ना. बी बोलता है कि मेरे गेस में पॉपुलेशन का मीन 70 है, जो पूरा पॉपुलेशन है. अब ए क्या बोलता है कि ए से सैंपल मीन इज इक्वल टू 70. मतलब बी जब पॉपुलेशन का मीन 70 बोल रहा है तो उससे ए क्या बोल रहा है, ठीक है जब पॉपुलेशन का मीन 70 है तो सैंपल मीन आल्सो कैन बी 70, है ना सर. हम पॉपुलेशन से सैंपल डिराइव कर सकते हैं ना सर. हम पॉपुलेशन का पूरे के पूरे पॉपुलेशन का मीन ही 70 है, तो सैंपल का मीन भी ऑन एन एवरेज उतना ही रहता है सर. बहुत मतलब 70.12 ऐसा होगा, लेकिन वो करेक्ट 70 रहेगा. सो ए सेज sample mean is equal to 70, and sample standard deviation is nothing but the fluctuation in the sample. Sample standard deviation is equal to 10. मतलब sample अगर हम लोग एक mean, if I take a normal distribution, अगर 70 बोलता हूँ तो 10 का difference 80, 90, 60, 50, तो इनके बीच में डिफरेंस 10 का चल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है ना. यानी हमारा डेटा डिविएट होगा तो 10 से डिविएट होगा. एंड सैंपल साइज वो बोलता है कि 61 है. सैंपल साइज इज इक्वल टू 61. मतलब वो लोग 61 लोगों का सैंपल निकाले. वो लोगों ने 61 पीपल का सैंपल निकाला. उसमें वो लोग को जो मीन मिल रहा है, एवरेज वेट ऑफ द पीपल इज 70 kgs. ऐसा समझ के चलिए सर. ठीक है. मतलब पॉपुलेशन का जो एवरेज है वो एवरेज किस चीज का निकाल रहे हैं सर, वो लोग वेट चेक कर रहे हैं. तो वो पूरे के पूरे काचीगुड़ा का पूरा काचीगुड़ा का पॉपुलेशन जो है, द एंटायर काचीगुड़ा एरियाज पॉपुलेशन व्हाटएवर इट इज, उसमें वो लोग एवरेज वेट जो है 70 kg बोल रहे हैं. Based upon that, A is saying that since okay, you think the population mean or the average weight of the people in the average weight of entire people in Kachiguda is 70 kgs. Okay. If B, you think that the average weight of the entire people in Kachiguda is 70 kgs. Okay. So entire people हमें पता नहीं है. तो like A बोलता है, तो if you are saying that कि पूरे population का जो average weight है वो 70 kgs है या population का mean 70 है, तो I can say कि हम जो सैंपल उसमें से निकालेंगे उसका भी जो एवरेज होगा वो 70 होगा, एवरेज वेट 70 होगा. और उन लोगों ने 61 लोगों का सैंपल निकाला है. ठीक है सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दैट मीन्स
अब ये क्या होता है, इन लोग अच्छा खासा डिस्कशन कर रहे हैं सर, ए एंड बी आर हैविंग ए गुड अमाउंट ऑफ डिस्कशन। इनको फिर ये कैरेक्टर जो है नल, वो इनका हाँ। हंसी उड़ाता है और वो बोलता है नो नेवर, व्हाट यू से इज रॉन्ग। ओके ओके, वो बोलता है कि पॉपुलेशन मीन इज 40। सो नल सेज, मिस्टर नल, Yeah. वो साइंटिस्ट को बोलता है कि नो यू आर रॉन्ग। हम इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं, एंड वो बोलता है, ही सेज पॉपुलेशन मीन इज 40। तो हाँ. इज ही काइंड ऑफ गिविंग दम ए काउंटर चैलेंज। काउंटर Yes. चैलेंज क्या है सर, ये एक बहुत बहुत ही होशियार कैरेक्टर है सर, ये सबको ऐसी मतलब परेशान करता। वो हाँ. बेचारे साइंटिस्ट है, वो रिसर्च कर रही है, उनको बोल रहा है तुम लोग बेवकूफ हो, मैं बोलता हूँ 40 है, ठीक है ना, कुछ भी ऐसे कैजुअली बोल रहा है। हाँ. तो अब ये जो बंदा बोल रहा है, ये बेवकूफ जो बोल रहा है 40, उसको साइंटिस्ट बोलेंगे कि हम तेरे इस पर्टिकुलर 40 को, या ये जो तूने बताया है कि पॉपुलेशन मीन इज 40, इसको हम लोग रिजेक्ट करके बताएंगे बेस्ड अपॉन माय रिसर्च। ठीक है सर, यानी ये जो 40 है ना, ये हाँ. रिसर्च नहीं है सर, ये इसका एक हाइपोथेसिस है, यानी एक बिलीफ है, एक थिंकिंग है। सर हम लोग हमेशा रिसर्च नहीं करते हैं, हम हमेशा हाँ. रिसर्च करते हैं क्या? वी आर नहीं. कॉमन हाँ. मैन हैज ए बिलीफ, हैज ए हैज ए हैज ए थिंकिंग, ओके, और ही जस्ट थिंक्स कि ये ऐसा हो सकता है ना। बट साइंटिस्ट लोग ऐसा हो सकता है पे बिलीव नहीं करते हैं, ऐसा है कि नहीं है उस पर बिलीव करते हैं। वो लोग रिसर्च करते हैं, हम रिसर्च नहीं करते हैं। am I right? Yes. तो हम लोग जो हैं वो ऐसे कुछ बोलते हैं तो एक बिलीफ है, उसके वजह से बोलते हैं, यानी वी हैव ए बिलीफ, या मिस्टर नल ये सोचता है, इट इज हिज थिंकिंग और इट इज हिज बिलीफ दैट द पॉपुलेशन ऑफ द काचीगुडा एरिया इज पॉपुलेशन मीन की बात कर रहा हूं मैं। वो बोलता है कि एवरेज वेट ऑफ द पीपल इन काचीगुडा एरिया इज 40 केजीज। वो कितना बोलते हैं? 70 केजीज। वो रिसर्च के ऊपर बोलते हैं, ये नॉर्मली बोलता है। तो जो हाँ. नॉर्मली बोल रहा है उसको वाकई में हमें रिजेक्ट करके बताना, या साइंटिस्ट उसको रिजेक्ट करेंगे इसकी थियरी को। वो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ओके सर, Okay. हाँ. we'll move forward. See, so here the sample size is 61. On an average the weight of these people is 70 kgs. तो मैंने क्या बताया सर, जो भी सैंपल है 61 लोगों का सैंपल है, उसका हाँ. जो मीन निकाले हम लोगों ने 70, उसको 70 केजी समझ लीजिए। यानी हाँ. ए बोलता है, बी बोलता है कि पॉपुलेशन, जो भी काचीगुडा का पॉपुलेशन है उसका एवरेज वेट है 70 केजीज। हाँ. इसको हम लोग पॉपुलेशन मीन भी बोल सकते हैं, म्यू बोल सकते हैं। एंड बी हाँ. ए बोलता है ठीक है, तुमने पूरे पॉपुलेशन का 70 केजीज बताया है, तो हम जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं 61 पीपल का, Yes. उन लोगों का भी एवरेज वेट 70 केजीज होगा एक्स बार। ठीक है, सैंपल। हाँ. और ये जो बंदा बोलता है, ये बोलता है तुम गलत बोल रहे हो, पॉपुलेशन मीन जो है वो 70 नहीं है, 40 है। ठीक है, हाँ. सो आर वी गुड टू गो अहेड? Yeah. ओके सर, सो नाउ ठीक है। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी हमने बताया है कि जो अगर डिविएशन, देखिए सर डिविएशन तो होता ही है, हम कोई भी एक डेटा निकालते हैं, वो डेटा जो है वो फ्री फ्रॉम एरर्स नहीं होता है सर दुनिया में। there is, it's a reality that whatever data is collected, when we say 135 crore population, the population of India is 135 crores. इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री, इट्स नॉट इजी टू से इंडिया का पॉपुलेशन इतना होगा, इट मे बी 136 करोड़ आल्सो, नहीं बोल सकते ना सर। तो व्हाट दे डू इज दे जस्ट कम आउट विद अ स्मॉल कंक्लूजन एंड दे कीप अ स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर वो बोलते हैं पॉपुलेशन 135 करोड़ का है, ठीक है, 135 करोड़, तो वो बोलते हैं कि हम उसमें लाइक 0.50 का स्टैंडर्ड डिविएशन रख के चलते हैं। यानी मतलब क्या है 0.50, जब मैं 135 करोड़ की बात करता हूं, यानी हाफ ए करोड़, 50 लाख यहाँ वहां, यानी वो 135 बोल रहा है ना, तो चलिए 1 करोड़ समझते हैं सर, इजी हो जाएगा। वो बोलते हैं कि 1 करोड़ यहाँ वहां भी हो सकता है। तो 136, 137, 134, 133, ये इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर कोई एक बंदा जिसको दिमाग खराब हो गया है, वो सही में भी अगर ऐसा कुछ करना शुरू करे, एक एक बंदे को काउंट करना शुरू करे और वाकई में ऐसा कुछ करे, तो हो सकता है वो आके हमको बोलेगा कि भाई तुम गलत डेटा दे रहे हो। तो वो बोलते हैं कि 1 करोड़ हियर एंड देयर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पर हमारा भी जो वेट हमने निकाला है 70 केजीज, हो सकता है 80 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, ठीक है ना, समथिंग हियर एंड देयर। ओके, नो डिस्प्यूट्स।
आगे. So the sample, so now appreciate that this is for the sample. This is not for the entire population. However, the second scientist says, which means we can also guess that mean of the population will also be 70. मतलब वो क्या हो रहा है, ये एक सैंपल निकाले सर, मतलब उन लोगों ने क्या किया सर, सैंपल निकाल लिया. एम आई राइट? हाँ. सैंपल के बेसिस पे वो बोल रहा है कि ए बोलता है कि सैंपल का जो मीन है वो 70 है. आप कैसा भी पुट करके सोच लीजिए सर, सैंपल से पॉपुलेशन डिराइव करना ज्यादा इजी होता है सर, पॉपुलेशन से सैंपल निकालना टफ होता है. क्योंकि अगर मैं पूरे के पूरे काचीगुड़ा में 30 लेन्स में जाके हर हाउस होल्ड से पूछूंगा तो मुझे जो डेटा आएगा वो पॉपुलेशन डेटा, पॉपुलेशन मीन आएगा. बट मैं क्या कर रहा, मैं 5 लेन्स ले लिया, 5 लेन्स. अच्छा ठीक है, समझ लीजिए मैंने 10 लेन्स इसमें से निकाल लिया. वो 10 लेन्स का मैंने पूरा का पूरा डेटा उसका निकाल लिया. और इसमें ये मेरे लिए थोड़ा इजी टास्क था, क्योंकि 30 लेन्स लेना मतलब इट इज अ टास्क ऑफ 1 मंथ. एंड 10 लेन्स का जो टास्क है मेरा 5 डेज में हो गया. ओके सर, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 10 डेज में हो गया. तो like this is easy for me, and after getting the data of these 10 lanes out of 30 lanes in Kachiguda area, based upon this I can also try to infer the mean of the Kachiguda area, the population mean of the Kachiguda area, the entire Kachiguda area का population का जो mean है वो मैं निकाल सकता हूँ. Okay, so here what they are doing is they have collected a sample of 61 people and they said that ये 61 people का जो average weight है वो 70 kgs हो सकता है. तो बी बोलता है जब तुम सैंपल का वेट 70 बता रहे हो तो हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन, पूरे के पूरे काचीगुड़ा पॉपुलेशन का भी जो वेट होगा एवरेज वो 70 kgs हो सकता है. आई एम राइटिंग ए पॉइंट हियर नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड. लाइक मैं ए और बी तो नहीं बता, मैं बोल सकता हूं, ठीक है. तो इधर मैं लिखता हूं सर, तो नाउ अप्रिशिएट दैट दिस इज फॉर द सैंपल. ये जो भी हमने डेटा निकाला है ये सैंपल के हिसाब से निकाला है, ठीक है, नॉट फॉर द एंटायर पॉपुलेशन. तो अब क्या होता है कि सेकंड साइंटिस्ट, द सेकंड साइंटिस्ट सेज, ये सिर्फ मैं पॉइंट लिख रहा हूं सर, कंफ्यूज नहीं होना. द सेकंड साइंटिस्ट सेज बेस्ड अपॉन सैंपल, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर. वी कैन, अगर एग्जांपल हो तो, इफ आई टेक यू डायरेक्टली इन द टेक्स्ट बुक एंड टीच यू, आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग बहुत बोरिंग और बहुत ही बेकार लगेगा. वी कैन आल्सो गेस दैट मीन ऑफ पॉपुलेशन इज आल्सो, विल आल्सो बी, ये हम कंफर्म नहीं है, मतलब हम बोल रहे हैं विल आल्सो बी 70, क्योंकि ऑलरेडी वी आर टेकिंग स्टैंडर्ड डिविएशन आल्सो. ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड ड्राइंग इन्फरेंसेस. तो ये सैंपल मीन से पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन फाइंड करना, ठीक है. वी कॉल दिस एक्टिविटी एज इन्फरेंस. दैट मींस वी आर इन्फरिंग दैट the sample mean is 70, so the population mean can also be, will also be 70. Okay, yeah. So अब हम एक पॉइंट यहां और लिख देते हैं. So you have a sample mean using sample mean you are drawing inferences about the population mean. Sorry, you mean like you have a population mean using the sample mean? Sir, I am saying we have collected a sample of 61 people. नहीं, ये sentence जो है, are you saying you have a sample mean or you have a population? You have a sample mean. No, you have a sample mean. You have a sample of 61 people, and the average weight of all those 61 people is 70 kgs. Based upon this, we can also say that the entire population of Kachiguda will also have an average weight of 70 kgs.
Am I right? The same thing I have written here. You are trying with sample mean, you are trying to find out the population mean. Am I right? Yes. So you have a sample mean. You have a sample mean of what? You have a sample of 61 people. And the average weight of the 61 people is 70 kgs. This is the average weight. This is the mean. Sample mean which I am saying. ये sample का ये mean है. ये 61 people के sample का जो mean है, sorry, x bar 70 kgs है. तो based upon this मैं क्या बता रहा हूं कि population का भी average weight जो होगा वो 70 kgs होगा. Sample of 61 people. इसका जो एवरेज है x बार 70 kgs है. बेस्ड अपॉन दिस आई एम सेइंग कि पॉपुलेशन, ये सैंपल मीन होता है सर. बेस्ड अपॉन दिस मैं बोल रहा हूं म्यू पॉपुलेशन मीन एंड विल बी आल्सो इक्वल टू 70. विल बी 70. अब ये क्यों कैसे होगा? ये एस्टिमेशंस है सर. ये एस्टिमेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन along with it. एस्टिमेशंस. नाउ so this is called drawing inferences about the population mean. हमने अभी डिस्कस किया. drawing inferences about, मतलब सैंपल मीन से population mean निकालना is nothing but drawing inferences. ये सैंपल वन अमॉन्ग्स, ये सैंपल जो है ना, ये पॉपुलेशन का ही एक हिस्सा है. Now, so however, suddenly Mr. Null steps in and he says, no sir, you are wrong. Population mean is not 70. Population mean is 40. तो ये लोग बोलते हैं कि साइंटिस्ट ए एंड बी बोलते हैं सैंपल मीन जो है वो, सॉरी, पॉपुलेशन मीन जो है वो कितना है सर? 70. बेस्ड अपॉन सैंपल्स, मतलब उन लोगों ने सैंपल निकाला, 61 पीपल का सैंपल निकाला, उसका मीन 70 केजीज बोला, उसके बेसिस पे पॉपुलेशन का मीन इतना होगा बोल के बोल रहे हैं. और मिस्टर नल जो है वो बोल रहा है नो, पॉपुलेशन मीन जो है वो 40 है. So now it's a classic dilemma and there is no way these scientists can find out a precise number of population because they don't have the bandwidth to go and talk to everyone. मतलब क्या हो रहा है, ये लोग, ये नल क्या उनके मजाक, उनको क्या कर रहा है, बहुत ही उसको मतलब मजाक उड़ा रहा है उन लोग का. बोल रहा है तुम लोग छोटा मोटा सैंपल निकाल के पूरे पॉपुलेशन का एवरेज वेट 70 कैसे बोल रहे हैं? मैं बोलता हूं कि वो 40 है. और अभी ये बेचारे इन लोग का प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरे लोगों के पास जा नहीं सकते, पूरा इंटायर काचीगुड़ा एरिया घूम घूम के हर किसी का डेटा निकाल के सबका मतलब वेट कितना है निकाल के फिर पॉपुलेशन का मीन निकालना इनके लिए बहुत मुश्किल है. सो बट व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू प्रूव दैट मिस्टर नल इज रॉन्ग. तो वो क्या करेंगे, वो लोग करेक्ट हैं, उनको पता है सर, लेकिन कोई उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डाल रहा है. वो बोल रहा है कि तुम गलत हो, तुम जो बोल रहे हो वो गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ सही है. और फिर उनके पास ये भी इतना एनर्जी भी नहीं है कि वो पूरे लोगों के पास जाके हर एक इंसान के घर जाके 5 लोगों का डेटा लेके उनका एक एवरेज वेट चेक करे. तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि भाई हमको तो पता है और हमको कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो सैंपल का हमने जो भी निकाला है वो इतना ही होगा, है ना. और एक उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, ऐसे कुछ बेवकूफ कैरेक्टर पूछेंगे उन लोग को जो मजाक उड़ाएंगे, ऐसे मतलब उनको ऐसी चुटकी में लेंगे, मतलब ऐसे मजाक करना, ऐसा मतलब फन करना, ये सब काम है इसका, ये यही करता है. ठीक है ना. अपने एग्जाम्पल का एक कैरेक्टर है सर, फनी कैरेक्टर. तो अब ये साइंटिस्ट क्या करेंगे, ये साइंटिस्ट इस नल को रॉन्ग प्रूफ करेंगे और इसको घर को भिजा देंगे. बोलेंगे भाई हम अपनी जगह पे सही है, तू बोल रहा है कि हम बोल रहे हैं पॉपुलेशन मीन 70 है, तू बोल रहा है 40 है, ठीक है, और तू हमको गलत बता रहा है, तो ठीक है हम तेरे को गलत प्रूफ कर देते हैं. और जब गलत प्रूफ हो जाएगा तो ये 100% प्रूफ हो जाएगा कि पूरे के पूरे पॉपुलेशन का जो मीन है वो 70 है. ठीक है सर. अगर वो लोग ये प्रूफ कर देते हैं कि ये पूरे के पूरे काचीगुड़ा एरिया में जो मिस्टर नल बोल रहा है कि काचीगुड़ा एरिया के जो लोगों का एवरेज वेट है वो 40 kgs है, when Mr. Null says that the average weight of the people in Kachigura is 40 kgs,
and he says that what you are saying is not right. If now they cannot go to each and every household and collect the like data and again find out the mean for entire Kachiguda area, the average weight of entire Kachiguda area, they know how to go about these things, and they have already done that. They have collected a sample, they have found out the average weight of that sample data, and with that they have inferred the population mean, okay, or the population of entire Kachiguda area, because they are the ones who are involved in these activities. They are researchers and they do this very often, so they know what they are doing is absolutely right. But this guy doesn't have an idea. He's just trying to make fun of these guys. Now these guys will teach this guy a lesson. Matlab scientist will teach Mr. Null a lesson by just saying that what you are saying is not right. Okay, okay, that's it. So they will prove that Mr. Null is wrong. That means they are going to prove that the population mean is definitely not 40. Okay, so now I'm writing a point. The scientists will prove Mr. Null is wrong, and here when scientists want to prove that Mr. Null is wrong, okay, so that means they are going to prove that the population mean is definitely not 40. Yeah. They are not saying that population mean is 70. They're just saying 40 तो नहीं हो सकता है, हमारे फिगर है मतलब विद द स्टैंडर्ड डिविएशन इधर उधर हो सकता है। 70 बता रहे हैं, ठीक है। अब वो ज्यादा कम भी हो सकता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड डिविएशन भी रख रहे हैं उसका, लेकिन वो 40 तो नहीं हो सकता, ये वो लोग प्रूफ कर देंगे। पॉपुलेशन मीन इज डेफिनेटली, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा बहुत तो एरर का स्कोप रहता है सर, क्योंकि ये पूरा डेटा है ना सर। आपको स्टैटिस्टिक्स कभी भी परफेक्शन से आंसर नहीं देगा, वो अप्रोक्सीमेशन ही देगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मतलब साइंटिस्ट proving that Mr. Null is wrong, okay, or what Mr. Null says is not right, or they are rejecting the Null's hypothesis. What they are doing? Hypothesis. Null, Mr. Null जो बोल रहा है वो उसका एक हाइपोथेसिस है, उसका बिलीफ है, उसका मानना है, उसका थिंकिंग है, उसका सोचना है, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, उसके हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। एंड दिस अच्छा लगा सर एग्जांपल? इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। So now we will perform this test and we'll go step by step, okay? तो अभी हम लोग ये पर्टिकुलर एग्जांपल के बेसिस पे ही जाते हैं, फिर मैं आपको अलग से स्टेप्स भी लिखाता हूँ। सर एक्चुअली में हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वैसे तो अगर मैं देखूं तो 7 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब आज मैं आपको जो बता रहा हूँ सिंपल वे में समझा रहा हूँ सर, सिंपल वे में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जब व्हेन आई विल बी स्टार्टिंग द टेकिंग द नेक्स्ट सेशन, उसमें मैं आपको 3-4 प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा और उसमें मैं आपको डिटेल्ड 7 स्टेप्स भी दूंगा सर, ठीक है। ठीक है। So now in general
any hypothesis test we can bring down. सर आपको क्लियर हुआ ना? मतलब सर नल जो बोल रहा है उसको, उसका जो हाइपोथेसिस है या बिलीफ है या थिंकिंग है उसको रिजेक्ट करना ही हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग है. हाँ उसके हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट करने के लिए टेस्ट कर रहे हैं. हाँ मतलब टेस्ट का रिपोर्ट जो आएगा वही बताएगा ना सर कि वो करेक्ट है कि रॉन्ग है. एग्जैक्टली. हाँ हाँ मैं बोलूंगा कि मेरा जो मुझे बुखार नहीं है, हाँ मेरा बॉडी एकदम गर्म है, और मैं बोलूंगा मुझे बुखार नहीं है. ठीक है हाँ सर, मैं नल हाँ हूं, ये मेरा बिलीफ है, हाँ मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैंने थर्मोमीटर डाल के नहीं देखा है. हाँ तो फिर मेरे पेरेंट्स डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर पूछेगा क्या हुआ तुम्हें, मैं बोलूंगा हाँ मुझे बुखार नहीं है. हाँ तो बोलेगा तुम्हारे पेरेंट्स क्यों लेके आए, मैं हाँ बोलूंगा मुझे तुम पेरेंट्स बोलते हैं इसका बॉडी बॉडी गर्म है, हमको लगता है बुखार है. मैं हाँ बोलूंगा मेरा बॉडी ऐसे ही गर्म रहता है, मुझे कोई बुखार उखार नहीं है, गर्म है बस. हाँ तो ये मेरा बिलीफ है कि मेरा बॉडी गर्म रहने के बाद भी मुझे बुखार नहीं है. हाँ I don't have fever even though my body is my body is, my body has a lot of heat in it. Okay, that means when we touch the body, when we touch the skin, हाँ it's kind of very hot. Fine. हाँ हाँ So whether you have fever or not can only be proved by just putting a thermometer. एग्जैक्टली. That will clinically tell you whether you are having fever or not. So मेरा डॉक्टर हंसेगा, वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा बिलीफ हो सकता है कि तुमको बुखार नहीं है, लेट अस नाउ टेस्ट इट एंड रिजेक्ट योर हाइपोथेसिस, या प्रूव दैट यू हैव फीवर, और प्रूव दैट व्हाट यू आर सेइंग दैट यू डोंट हैव फीवर इज नॉट राइट. एम आई राइट? हाँ हाँ ओके. बस वो क्या करेगा, थर्मामीटर लगाएगा, बोलेगा कि आपका जो हाइपोथेसिस है, बिलीफ है, वो करेक्ट नहीं है, आई रिजेक्ट योर हाइपोथेसिस दैट यू डोंट हैव फीवर. हाँ How will he prove? By showing that what is my temperature. थर्मोमीटर That's it. आएगा. That's it. ओके. तो ये आप इंट्रोडक्शन ठीक है. हाँ सर, इंट्रोडक्शन ठीक है. हाँ हाँ सर ये क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको बहुत बहुत एरियाज में आपको हेल्प करता है सर, बहुत एरियाज में. हाँ हाँ. नहीं सर, मेरे को एक्सपीरियंस है. जैसे मैंने बोला ना कि जैसे हमारा जो बैंक है, हाँ when we were trying to replace an external risk calculation application with an internal one, हाँ हमको मतलब 3 महीने का डाटा मतलब रेगुलेटर को दिखाना पड़ेगा हाँ कि हमारा जो मतलब कैलकुलेशन है, हाँ अगर एक्सटर्नल भी कैलकुलेट किया, इंटरनल भी कैलकुलेट किया, तो वो सही मेजरमेंट आएगा. हाँ तो ये सब मतलब हाइपोथेसिस, ये सब मतलब हमारे रिस्क वैलिडेशन टीम बोल के, आरएमवी बोल के, हाँ रिस्क मॉडल वैलिडेशन टीम बोल के एक अलग सा टीम था. हाँ. तो वो लोग ने मतलब आई थिंक हाँ, वो ये जो सैंपल करते हैं ना, हाँ हाँ रिसर्च I'll करने show you the वाले. paper. I'll actually मतलब मैं दूसरे कंप्यूटर पे हैं, I'll share you the paper. वो मतलब वो डिटेल में मतलब अच्छा देते. Their paper is very interesting. पेपर देते एक वाइट पेपर. हाँ हाँ तो एप्रा को मतलब रेगुलेटर को जब सबमिट करते हैं ना, हाँ वो दे इट्स हाँ मतलब अच्छे करते हैं. Oh, yeah, that is they have this experience of doing. So हाँ देखिए सर, हाँ दिस इज नल हाइपोथेसिस, यानी हम कभी भी नल हाइपोथेसिस को ये जीरो से बताते हैं सर. एच नॉट क्या बताते हैं सर, एच नॉट क्या बताते हैं, हाँ आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डॉट. सो द नल सेज दैट द पॉपुलेशन मीन इज It's not. 40 and to prove the It's not. null, It's not. epsilon, yeah, to prove that null's hypothesis is not correct or wrong, or what null says is not right, we need to prove that the population mean is not equal to 40. हम जाके ये नहीं प्रूव कर सकते कि पूरे के पूरे पॉपुलेशन का मीन 70 रहेगा, वो हमारे लिए पॉसिबल टास्क नहीं है, बहुत बड़ा टास्क है वो,
You can't go to the, you can't roam around the entire Kachiguda area and collect data and say that what you are saying is right, because that guy will again say तुम wrong है. So it is better to prove him wrong, क्योंकि ऐसे mental character को हम wrong proof कर दिए तो वो चले जाता घर को. Got my point? वापस नहीं आता हमारे पास. That's what. So we will prove him wrong by saying that with the help of the alternative hypothesis. Okay, that, so ये null hypothesis है. It is his belief. With the help of alternative hypothesis will prove that null is wrong. Okay, now इसमें अब step 2 क्या होता है सर? For step 1 में आपको null hypothesis क्या होता है वो देखना है, and alternative hypothesis क्या होता है वो देखना है. Okay, and one more thing, null hypothesis maximum कभी भी equal to sign के साथ रहता है. Okay, और ये नॉट इक्वल टू मतलब ये एक टू टेल टेस्ट है सर. यहाँ पर टू टेल टेस्ट आएगा. एक्चुअली इफ इट इज ग्रेटर देन तो वन टेल टेस्ट होता है. दैट मींस राइट साइड ऑफ दिस. ओके, आई हैव ऑलरेडी गिवन द वार कॉन्सेप्ट. हाँ, वार कॉन्सेप्ट मैंने दिया है. दिस इज कॉल्ड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड दिस इज लाइक 5% सिग्निफिकेंस लेवल, दिस एरिया. सिर्फ मतलब राइट साइड, मतलब वो पॉजिटिव का स्टैंडर्ड डेविएशन का राइट साइड का लेना है. और अगर ये आता है तो उस साइड बोले तो बोथ साइड्स, मतलब नेगेटिव कितना है पॉजिटिव कितना है. ये लेफ्ट, ये राइट टेल टेस्ट रहता सर. ये वन टेल्ड है. ठीक है, ये लेफ्ट टेल्ड है. और आपको टू टेल टेस्ट बोले तो both the sides, right and left. Yes. Two point five. अच्छा, okay. Now, सर अभी मैं आपको कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं बता रहा हूँ, बस एक प्रूफ बता दूंगा. कल हम लोग डिटेल में डिग करेंगे इसके अंदर. ठीक है, अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ बस उतना समझ लीजिए. अब मैं आपको जो बता रहा हूँ स्टेप 1 है आपका नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिराइव करना. स्टेप 2 है टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड करना. अब ये टेस्ट स्टैटिस्टिक मैं कल बताऊंगा सर क्या होता है. श्योर, I will go in details into that. ठीक है, seven steps all together. हाँ सर, आप बोल रहे हैं या 7 steps. But right now मैं मतलब I will just write down what is the step. मैं लिख देता हूँ, चले कोई बात नहीं सर, क्योंकि again this will be like rotating की ये क्या है. तो इसके बारे में मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, उतना काफी है अभी आज के लिए आपको समझना. ठीक है, श्योर. So that much is more than enough for you to understand for the thing for as on today. So test statistic, it is a quantity. बस मैं आपको generalized way में बता रहा हूँ सर. Sure. It is a quantity calculated based on a sample, so which we have already collected, whose value is the basis. Whose value? Test statistics value. Yeah. Is the basis for deciding whether or not to reject the null hypothesis. ये कोविड पोस्ट कोविड थिंग्स आर अच्छा नहीं है सर. ये कोविड नहीं आना सर किसको भी. पोस्ट कोविड मतलब इतना वीकनेस रह रहा सर. दिन में चक्कर आता है सर, 2-3 बार आ जाता है. मेरे मॉम तो 2 बार तो वो मतलब चलते चलते ही गिर जा रहे हैं सर. मेरे फादर को भी ऐसे हो रहा, मेरे को भी हो रहा. Now, so what did we decide, sir? कि it is a quantity
calculated based on sample, whose value is the basis for deciding whether or not, whether to reject the null hypothesis or not. मतलब whether or not, sorry, I'll just write it here, whether or not to reject null hypothesis. मतलब ये टेस्ट स्टैटिस्टिक आपको बताएगा कि आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है कि नहीं करना है। तो वो कैसे बताएगा, मैं वो पॉइंट भी लिखता हूं, उसके बाद मैं कल डिटेल में भी जाता हूं उसके। श्योर। सो वो आपको कैसे डिसाइड करना है कि वो टेस्ट स्टैटिस्टिक रिजेक्ट करता है कि नहीं करता है, मैं आपको पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे प्रॉब्लम के हिसाब से, उसके बाद हम लोग देखते हैं। सो हियर द टेस्ट स्टैटिस्टिक, द फॉर्मूला फॉर टेस्ट स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू सैंपल मीन माइनस hypothesized value. Hypothesized value is nothing but the null hypothesis what is said, okay, by standard error. So sample mean is what, 70, which the scientists are saying, okay, minus 40 divided by 10, minus 40 divided by not 10, standard error का formula है sx by root n, okay, so 10 by the sample. सर इसको मैं आपको सही समझा देता हूं, ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, वो बिकॉज ऑफ एरर। मतलब जो 70 और 40 के बीच का जो डिफरेंस है ना, यू आर, दिस इज एरर एडजस्टेड, वी आर एडजस्टिंग द एरर, व्हाट वी आर डूइंग। सर कभी भी याद रखिए, अगर मैं सपोज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बोलते हैं ना सर, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, तो जो भी रिटर्न हमको आता है हम डिवाइड बाय रिस्क लगाते हैं, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन करते हैं, am I right? तो जो जब स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करते हैं उसको, यानी आपके सामने दो रिटर्न्स होता है सर, एक रिटर्न यहाँ पर सपोज x और y, इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस डिविएशन, that is because of some error. Deviation error से create होता है। तो when we divide by standard deviation, it is called risk adjusted return. क्या होता है? Risk adjusted return. The best and classic example of risk adjusted return, you would have you've got this point, CAPM equation हमने किया था ना? Market return minus the risk free rate divided by बीटा इंटू बीटा इंटू था ना सर? हाँ। तो अब क्या होता है सर, देखिए ये देखिए, मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट, अब बीटा सपोज 1.5 है, डिवाइड बाय 1 रहता है सर वहां पर, ये मार्केट रिस्क है, ये 1 रहता है डिवाइडेड, मतलब यहाँ आप ऐसा लिख दीजिए, RM माइनस RF डिवाइडेड बाय 1 into 1.5. This is not for other students, उनको CAPM नहीं हुआ है, आपको समझा रहा हूं मैं। Divide by 1 is what? Divide by 1 is what? Market return is 7%, risk free rate is 4%, and these are risk adjusted. What kind of risk adjusted? Market risk adjusted. Yeah. Got my point? हाँ सर। तो हम उसको बोलते हैं risk adjusted return. Okay sir? Now, तो ये जो है ना सर, ये बंदा जो 40 बोल रहा है ना, साइंटिस्ट को पहले से मालूम है कि वो रॉन्ग है, और वो जो बोल रहे हैं 70 है, तो वो उसको गलत प्रूफ करने के लिए बता रहे हैं कि ये हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस, ये हमारे बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, वो क्रिएट होगा ही होगा, वो डिफरेंस रहेगा। द डिफरेंस बिटवीन दिस 70 and 40 would definitely be there. It is inevitable. You can't avoid this because this guy is wrong and what we are saying is right. So the difference, whatever is getting created, is because of this element called error. Yes. तो वो ये हम क्या कर रहे हैं सर, टेस्ट स्टैटिस्टिक इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स which are error adjusted. The mean which is error adjusted, the difference in the mean which is error adjusted, the difference in the means is only created because of the error, so we are adjusting that and coming out with a point. That is test statistics. समझ में आया सर? हाँ सर। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन मीन नल बोलता है 40 है, हम बोलते हैं 70 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस जो होता है ना, वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एरर, एंड हम इसका एरर एडजस्टमेंट करके जो भी आ रहा है वो फाइंड कर रहे हैं
और वो टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारा जो आएगा 23.43 आएगा, यानी ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि वेदर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और नॉट, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स है, मैं बताता हूं सर। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे को सर घूम रहा है एकदम। हाँ, मतलब वीकनेस अभी गया नहीं, अभी तो नहीं गया सर, 3 मंथ्स तक नहीं जाता। डॉक्टर बोला 3 मंथ्स तक खाते रहना मल्टीविटामिन। हाँ हाँ हाँ। पता नहीं सर, हम लोग तो कितना प्रिकॉशन लिए हैं, आपको बता भी नहीं सकता हूँ सर। हम्म। और सर जो प्रिकॉशन ले रहा उसको ही आ रहा सर, जो नहीं ले रहा उसको नहीं आ रहा सर। सेम केस आज टाइम्स ऑफ इंडिया में विरिंची हाँ हॉस्पिटल से ना, हाँ उसमें बहुत सारे पेशेंट्स आए डॉक्टर के पास। वो लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा स्मेल गया बोल के बोल रहे हैं, हाँ हमारा हाँ स्मेल गया बोल के कंप्लेंट लेके आए। अब वो स्मेल गया तो वो डॉक्टर बोला स्मेल गया तो गया होगा भाई, सर्दी आया होगा तुम्हारे को, नहीं मेरे को टेस्ट करो, कोविड टेस्ट करो बोल के पीछे पड़ गए उसके। उसके टेस्ट में पूरा का रिपोर्ट नेगेटिव आ गया। वो लोग बाहर ब्लेम कर रहे हैं कि हॉस्पिटल का टेस्ट रिपोर्ट खराब है। हाँ हाँ। डॉक्टर वैसा नहीं है, ये लोग स्मेल चले गया बोल के बार बार वो नेसल स्प्रे वो सूंघना स्टार्ट कर दिया, और नेसल स्प्रे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मारना शुरू कर दिया नाक में। हाँ, उससे क्या हो गया, उनका स्मेल चले गया। हाँ हाँ, वो रियलाइज नहीं कर रहे पब्लिक। इतना डॉक्टर्स भी बहुत कंफ्यूज है सर इसके लिए। आई थिंक सर जब तक मतलब प्रॉपर मेडिसिन नहीं आएगा, वो 1-2 साल तो लगेगा। वो वैक्सीन का भी भरोसा नहीं है सर। ऑल दिस इज लाइक हाँ, वही बोल रहा हूँ, मतलब इवन ट्रायल वैक्सीन अभी 6-8 महीने में आएगा, 6-8 महीने। हाँ मतलब फुल फ्लेज वैक्सीन जो मतलब 190% उसको करेक्ट कर सकता है, हाँ, वो मेरे हिसाब से 2 साल तो 2-3 साल तो मिनिमम लगेगा। यस सर। हम्म। सो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट सर, नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक, अब हमको क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करना है सर, स्टेप 3। हाँ, So step 1 was what? Step 1 was to हाइपो। find out the null hypothesis and alternate hypothesis. हाँ Step 2 is nothing but to find out the test statistic. हाँ, Step 3. whether to reject or not, No, step 3। critical value, then we will reject. कल के जो आपको एग्जांपल बताऊंगा ना, बहुत अच्छे डिटेल स्टेप्स रहेंगे सर। आज शॉर्टकट में बता रहा हूँ। स्टेप 3 क्रिटिकल वैल्यू निकालना है हमको। हाँ। क्रिटिकल वैल्यू कैसा रहता बोलते सर, ऐसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करना, हम्म। based upon the 2.5 यहाँ पर 97.5 हाँ है ना सर, हाँ और इस तरफ भी 2.5 रहेगा। तो नहीं, इसको नहीं बोल सकते सर, सर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल रहेगा, 2.5 आएगा। ओके सर। हाँ हाँ तो अब यहाँ पर क्या हो गया सर कि हमको क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने का, ये सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं इसको। समझ हाँ लीजिए कि क्रिटिकल वैल्यू सपोज 2 है सर, या +2 समझ लीजिए सर, ऐसा समझ लीजिए। एक्चुअली में क्रिटिकल वैल्यू आपको 1.65 1.96 ऐसे आता। मैं कल के एग्जांपल में आपको समझा दूंगा। हाँ फॉर एग्जांपल द क्रिटिकल वैल्यू इज 2 फॉर एग्जांपल। ओके, हाँ तो अब इसमें हो क्या रहा है सर, स्टेप 3 में, now once we are through with that, in the step number 3 we are going to find the critical values are, अभी हम लोगों ने critical values क्या होता है सर कि आपको critical values डायरेक्टली आपको मिल जाता है सर, टेबल से मिल जाता है। किससे मिलता है? टेबल से। टेबल से मिलता है। ओके सर। हाँ तो अभी क्या होना है सर कि जस्ट अ सेकेंड, प्रोबेबिलिटी टेबल्स देख के आपको मालूम होता है, ठीक है। हाँ तो ये पर्टिकुलर इंस्टेंस में हमको क्रिटिकल वैल्यूज मतलब टेबल से निकालना पड़ता है। आपका हाँ सैंपल साइज था 61, है ना सर? हाँ हाँ। 61 - 1 यानी n-1 करना। हम्म। तो आपको जो भी आता, दैट्स द फॉर्मूला वी वुड बी यूजिंग फॉर अ हाइपोथेसिस टेस्ट ऑफ मीन। सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं ना सर, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है
95% कॉन्फिडेंस इंटरवल और लाइक n-1 भी करके हम लोग देखते हैं, मतलब टेबल में मैं आपको दिखाऊंगा सर, कल आपको मैं जब प्रॉब्लम कराऊंगा तो आपको हाँ टेबल में भी दिखाऊंगा, ठीक है सर। ओके तो सर। अभी मैं आपको डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ तो अब 60 का जब हम देखते हैं तो जस्ट अ सेकेंड, हम लोग को क्या देखना है कि 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर जो भी 0.05 होता है उसमें 60 और 0.05 का जो मर्जिंग कॉलम आता है, ठीक है, हाँ हाँ तो उसका वैल्यू हमारे को 2 आ रहा सर, ये एक केस में फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाँ मतलब क्रिटिकल वैल्यू 2 आ रहा मेरे को। हाँ 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 मतलब सर क्रिटिकल वैल्यूज मैं आपको बताता हूँ सर क्या होता है। अब क्रिटिकल वैल्यूज क्या होता है सर कि आपका क्रिटिकल वैल्यूज 1.65 और 1.96 ऐसा करके 3 वैल्यूज आता सर। एक हाँ सेकंड हाँ ठहरिए सर, मैं बताता हूँ आपको। Because I thought of showing those tomorrow with the table. हाँ अभी इसमें देख लेते सर क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक है। तो हाँ मैंने अभी आपको क्या बताया था सर, सिग्निफिकेंस लेवल क्या बताया था, 5%। ये 5% सिग्निफिकेंस लेवल है, हाँ ठीक है। हाँ और आपका ये जो लाइक 60 बोल के आया ना सर हमारे को अभी, हाँ 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 n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक सेकेंड, बड़ा टेबल चाहिए, ये देखिए सर, ठीक है। तो हाँ हाँ अभी मैंने आपको क्या बताया था सर कि मैं मतलब इसको वो कर 5%। देता, हाँ मैं इसको वो कर देता हूँ, मतलब जूम कर देता हूँ। सो सी हियर सर, एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल, या ठीक है, हाँ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी यू कैन नॉट टेक, सैंपल साइज इज 60, हाँ but you should, for degrees of freedom you should go with n-1, okay। हाँ so 60 आएगा सर, ठीक है हाँ सर। वो हाँ रूल होता है, क्या होता है, रूल। in some of the cases you will be directly given this values, critical values. हाँ In some of the cases you need to find out the critical values, हाँ ठीक है। so we हाँ remember the sample size is 61 and the and degrees of freedom is 61 minus 1। हाँ मतलब क्या होता है सर, ये पूरा n हम पॉपुलेशन को बोलते हैं सर, हाँ 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 इसमें से आप एक निकाल ले रहे ना सर, डिग्रीज ऑफ हाँ फ्रीडम, हाँ ठीक है। तो अब आपके पास 60 बच जाता है यहाँ पर, हाँ मतलब 60 स्टिल है वहां पर, ठीक है। तो हाँ ये हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। कल इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल देता हूँ सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर भी आपको मैं पूरा मतलब कॉन्सेप्ट देता हूँ। आज मेरा एजेंडा ये है कि आपको सिर्फ एक हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे होता है बताना। तो यू कैन सी हियर 5% significance level, हाँ I'll go down, I'll check the numbers, and here is 60, exactly 2, राइट ओके 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 okay, हाँ got it। हाँ See, I will be coming out tomorrow with degrees of freedom, test statistics, सब आऊंगा मैं, सब कराऊंगा, पूरे की definition भी दूंगा। But श्योर today's श्योर agenda is only to explain you how to do a test and just make you to understand ये क्या है पूरा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। हाँ हाँ So ये मेरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से n-1 के ऊपर मेरा जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 2 आ गया, हाँ एंड इट सिंस इट्स अ टू टेल टेस्ट, हाँ -2 और +2 लगा लूंगा मैं, ठीक है। हाँ अब क्या देखना है सर कि आपको रिजेक्ट कब करने का है, ओके। हाँ सो द पॉइंट हियर व्हिच आई विल राइट हियर इज टेस्ट स्टैटिस्टिक if it is greater than critical value, reject the null hypothesis. Test statistic if it is less than the critical value, एक्सेप्ट fail to reject राइट the null hypothesis। अब मेरा बोलने का मतलब ये है कि मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स 23 आया सर, am I right? हाँ 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 है ना। हाँ तो मेरा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो 23 आया, हाँ 23 पॉइंट समथिंग क्या है सर, हाँ हाँ पॉजिटिव आया मुझे, ओके। हाँ हाँ
23.43 आया, तो मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक 23.43 इससे बाहर ही आएगा ना सर, हाँ, यही रीजन में आएगा. तो हाँ, कैन आई रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस? yes, यस, आई कैन रिजेक्ट दी नल null, हाइपोथेसिस. हाँ, और अगर इन दोनों के बीच में ये एरिया में आता ना सर, तो मैं रिजेक्ट हाँ, नहीं कर पाता. ओके, हाँ, 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 so here I have successfully proved that Mr. Null is wrong. Okay, हाँ, so the simple rule, so then you need to check you need to check whether 23.43 whether it's falling inside the range or outside. So what हाँ, we say, it is falling outside the range. Okay, हाँ, अब ये रेंज के अंदर आ रहा है तो fail to reject. I'll write the points over there. I'll just write it here neatly. ये fail to reject है और ये reject है. ये हाँ, फेल टू रिजेक्ट और रिजेक्शन रीजन के बीच का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो क्रिटिकल वैल्यू से हो रहा है. हाँ, 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 ओके, तो हाँ, अगर यहाँ पर सिंस ये हमारा 2 टेल टेस्ट है, 1 टेल टेस्ट होता तो सिर्फ आप एक ही लिखते. ओके, अगर इस रीजन में आ रहा है तो फेल टू रिजेक्ट और यहाँ हाँ, आ रहा है तो रिजेक्ट, तो हमारा यहीं पर आ रहा है, ठीक है, तो रिजेक्ट कर देंगे. वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. yeah, ओके, हाँ, so which means we have been able to prove that Mr. Null, the character, is wrong. Okay, yes, तो हमारा स्टोरी क्या था सर? हमारा स्टोरी, we'll go back again, go back to the story. There were 2 scientists, yeah, and scientist A says कि scientist B says कि sample mean is 70. ठीक है, yeah, हाँ, so scientist A says that my guess is that even population mean is 70. yeah, That is, population mean here means the weight of the average weight of the people in Kachiguda area, 70 kgs. हाँ, Okay, and here this Mr. Null says, no, you are wrong, population mean is 40. Okay, हाँ, so we reject you, Mr. Null. I'm 95% confident that population mean is not 40. This is what they have proved with the hypothesis test. Okay, yeah, हाँ, with the hypothesis test, the scientists say, and how we have already done that, yes, we reject you. We don't want to prove that we are right, because again you'll say कभी भी right नहीं हो सकते, तो अगर हम तुमको wrong prove करते तुम, you will be out of the scene. हाँ, I am 95% confident that the population mean is not 40 based upon the hypothesis test. yes, Okay, हाँ, we reject you, Mr. Null. Fine, and the job is done here. The population mean is not 40. Okay, हाँ, so sir, कल हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे और फिर टेक्स्ट बुक में भी जाके थोड़े क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है सर. Very big chapter. Tomorrow we can go for the entire we'll do more questions from this, and Yeah. then we'll also go further and dig deeper into the subject. Okay, sir. Sure, sir. हाँ. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, sir. हाँ. Bye, sir. Bye.